coming onto the bat, and it was not easy to hit unless you'd spend some time in the middle. So how would you assess the pitch as a batting pitch? I thought in the second half, first half there was a bit of variable pace and there was a bit of bounce, but in the second half I felt it quickened up a bit. And when the spinners, they were bowling slow, like when Ash bowled, so he got a bit of turn, even Jadeja got a bit of turn, but overall I felt the pace increased in the second half, and it was coming nicely onto the bat. I don't think there was much swing for the fast bowlers in both the innings, but when you bowl first, you may get a bit of reverse swing, which they got, and we were not able to get that. The reason being, under the lights, I don't know what really happens, but it slightly comes on better and the ball doesn't get scuffed up so easily. So that was the only difference. I felt it was a decent wicket, and it was not like a proper batting wicket or bowler's paradise. It was just a mix where you could still hit the right areas, and as a batsman you can score. MS, what do you attribute the improvement in your pace attack to, and as a captain, how enjoyable is it to have that armoury that maybe Indian cricket hasn't always had in the past? Well, I think it's one thing that we'll have to do in the test format, even more than the ODIs. But the general psyche of the Indian fast bowlers, even when they play in the subcontinent, they want to use the new ball well, because even in test matches they don't bowl a lot. The spinners do a lot of bowling, so when they get a chance to bowl, they want to bowl everything in that spell of theirs, in swing, out swing, yorkers, everything. But now with a few away tours, I feel what they have learnt is the importance of just keep hitting that one area where you want to bowl, and keep hitting it, and building up the pressure and bowling in partnership, and that actually creates that pressure where the batsman gets out. And I feel it's bowlers have really tasted it, and now they actually believe in that. Saying is one thing, believing is something that's more important, because once you believe in something like that, you keep working on it, the subconscious keeps working, and the good thing is, it becomes part of the system. So I'm hoping that, they'll learn out of this, and when they come back again, irrespective of where we play, a test series outside the subcontinent, it will really help them. They're bowling at good pace, all of them are fit, and if they can keep hitting, that one area, I think it will be good, because that's something where we have been lacking. We have found it slightly difficult after the 40th over to get wickets when it comes to test matches. I feel this is something that will help. Last two in English. MS, we have done very well up till now, but how difficult you think that this winning force be maintained in maximum 2 number of matches? Is it any special instruction for your team, or just I mean that how difficult is to maintain in next 2 matches? First, thanks for the compliment, but this but always comes in. I don't know why. So you can always compliment and ask the question later. It's always tough. Nothing is easy. It's just that when you have won the game, you tend to brush everything under the carpet. But what's important is to still keep improving in those areas. So whatever we have not done right in this game, we'll like to do it properly in the next one, and that's what it's all about. It's nothing like a magic wand where you just wave it and it comes in your favor. So I feel we have done well. We have batted well. We have got partnerships going. We have bowled in partnership. People have contributed. We have taken good catches, run-outs. So overall, it's looking very good. It's just that we'll have to keep repeating, more often than not. Last one, Vijay. Mahendra, was it the best catch you have taken in your career, or can you recall as good a catch? And also, today's fielding was the best in the World Cup so far? I think our fielding, we are a very good fielding side. We had a game where we dropped quite a few catches, but apart from that, the fielding has been good. The reason being, we have got good fielders, and we have got fielders who are like average fielders. So we don't really have anyone who we have to hide in the side, which means, on an average, we are a very good fielding side. There are other sides also which are very good in fielding, but still you can target a few of, their fielders, when it comes to these big boundaries. But overall, our fielders, they look good. Even the fast bowlers are good. And about the catch, fluke happens, so let's enjoy it. And, hopefully it will happen more often. Last 5 in Hindi. Number 1, Sundaram Relay 2, Bhushan 3, Rajaram 4, next one 5. Yeah.
माही, आपका इस वर्ष एमसीजी के साथ लव अफेयर काफी अच्छा चल रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आपने भारत को अश्विन के साथ में लाइन क्रॉस कराई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आपने बिल्कुल यहाँ पे साक्षात भारत का अवतार बिल्कुल बना दिया, पूरा ब्लू हो गया, ब्लीड ब्लू। और उसके पश्चात आज फिर क्वार्टर फाइनल में कमाल हो गया। तो 29 मार्च को हम आपका फिर से मेलबर्न में स्वागत करें। इस रास्ते में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, या कुछ नहीं लगता? नहीं, चैलेंज तो क्रिकेट ही है, क्योंकि आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे वापस आके खेलना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट गेम है वो सिडनी में है, सो उसके अलग चैलेंजेस रहेंगे। एंड होपफुली अगर हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसको और ऊपर लेके जा सके तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक और यहाँ पे हम फाइनल्स खेल सकते हैं। माही, हर मैच में एक नया हीरो आ रहा है, ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि कौन कर रहा है इससे ज्यादा जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। जैसे जो बैट्समैन अच्छा कर रहा है वो 100 की तरफ लेके जा रहा है, टीम को उस तरफ लेके जा रहा है, ये कितनी सुख की बात है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी टीम के टीम मीटिंग में अगर आप जाओ और बैट्समैन का मीटिंग अगर चल रहा हो तो हर कोई यही बोलता है कि अगर आपको एक स्टार्ट मिले तो आप मेक श्योर करो कि वो एक बड़ा स्टार्ट हो। अगर 1-2 विकेट गिर जाए तो आप नए जो बैट्समैन है उसके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करो, सो दैट नीचे वाले बैट्समैन पे ज्यादा प्रेशर ना आए। तो अभी तक हमारी टीम ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। जिस भी बैट्समैन को एक अच्छा स्टार्ट मिला है उसने उसको कन्वर्ट किया है, तो उससे क्या होता है बाकी के जो बैट्समैन है उस पर प्रेशर कम हो जाता है। तो आगे भी ये करना पड़ेगा हमें, और सेम चीज हमने बॉलिंग में भी की है। अगर आप फास्ट बॉलर्स का देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फास्ट बॉलर है जो हर मैच में विकेट ले रहा है। आई थिंक तीनों ने मिलकर बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और जहां तक स्पिनर्स की बात की जाए तो विकेट्स के आप तौल नहीं सकते कि इतने विकेट मिले हैं इनको, बट उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर मेंटेन किया है और क्रिएट किया है जिसके कारण दूसरे फास्ट बॉलर्स को विकेट मिले हैं, आई थिंक उनका भी जो रोल है मिडिल ओवर्स में बहुत क्रूशियल रहा है। एमएस, विराट के बारे में पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान मैच के बाद उन्हें स्टार्ट मिला, आज नहीं मिला, स्टार्ट उन्हें मिला है, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्या अच्छी बॉलिंग को आप बोलेंगे या कुछ पोस्ट शॉट सिलेक्शन भी रहा है? आई डोंट थिंक ऐसा कोई पुअर शॉट सिलेक्शन रहा है। अगर आप देखें तो एक डोमिनेंट बैट्समैन है जो जाके अपना स्ट्रोक्स खेलना पसंद करते हैं। एंड आई डोंट थिंक ही हैज बैटेड बैडली। जब मौका मिला है, स्टार्ट मिला है तो उन्होंने रन भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार वो जब बैटिंग करने गए हैं तो 100 किए हैं। मे बी जो टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था तो हम सब कुछ उससे रिलेट कर रहे हैं कि यार हर इनिंग में 100 होना चाहिए। तो काफी डिफिकल्ट होता है, बट एट द सेम टाइम आप प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो एंड आई फील ये सारी चीजों पे वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। एंड जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड बिग प्लेयर्स दे ऑलवेज स्कोर इन बिग गेम्स। लास्ट टू राजाराम भाई, उमेश यादव की गेंदबाजी के बारे में आज क्या कहेंगे आप? आई थिंक तीनों फास्ट बॉलर्स हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उमेश ऑफ कोर्स इन तीनों में सबसे तेज डालते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो हमने देखा है कि स्पेशली अभी उस फेज में चल रहे हैं जहां पे उन पे विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। काफी अच्छे एरियाज में बॉलिंग कर रहे हैं, और जब आपके पास वो एक्स्ट्रा पेस होता है तो बैट्समैन के जो गलती करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आई फील ओवर द इयर्स ऑन एंड ऑफ उमेश ने काफी मैचेस खेले हैं, बट अभी रेगुलर टीम का पार्ट हो गए हैं। एंड आई थिंक एक ऐसा रीजन जिसके कारण वो हमारे टीम का रेगुलर पार्ट है कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है बॉलिंग में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेस हमेशा से उनमें था, 140 के आसपास हमेशा डालते थे। अभी ऑफ कोर्स 145 के आसपास डाल रहे हैं, बट जो कंसिस्टेंसी है एक जगह बॉल डालने की वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फास्ट बॉलर जो तेज भी डालते हो। एंड ऑल्सो आईपीएल के मैचेस खेल के और इंडिया में मैचेस खेल के काफी एक्सपीरियंस भी उन्होंने गैदर किया है। नाउ ही नोज ये फील्ड पे ऐसे बॉलिंग करना है या इस सिचुएशन में मैं ऐसा बॉलिंग कर सकता हूँ। एमएस, आपकी 100 विन्स हो गए आज ओडीआईज में। आप अपनी जर्नी को एज अ कैप्टन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे समराइज करेंगे, स्पेशली ओडीआई कैप्टनसी को? और दूसरा, कोई एक टफ फेज जो आपको अभी भी याद आता है कि वो सबसे ज्यादा टफ था ओडीआई कैप्टनसी को लेकर के? ओडीआई में आपका प्रॉब्लम ये होता है कि रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब एक बायलैटरल सीरीज होती है तो 5 मैच होते हैं, 2 हारे 3 जीते, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो आपका रिकॉर्ड होता है वो ऊपर नीचे चलता रहेगा। मैंने फर्स्ट टाइम जब कैप्टनशिप की थी तो हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में खेले थे,
वो सीरीज हम हार गए थे। तो ऊपर नीचे लगा ही रहता है, इट्स कॉन्स्टेंट पार्ट एंड पार्सल। हम काफी स्ट्रगल भी बीच में हमने किया था कि हमारे पास डेथ बॉलर्स नहीं थे, हमारे फास्ट बॉलर्स जो एक्सेप्शनली क्विक फास्ट बॉलर्स थे वो एक जगह पे बॉल नहीं डालते थे, और जो हमारे एक जगह डालने वाले थे वो तेज नहीं थे। तो काफी कुछ हमने झेला है, ऑलराउंडर करते हुए हम 4-5 साल हो गए। हम ऑलराउंडर अभी तक ढूंढ रहे हैं, बट हमने बोला कि जो नहीं है सो नहीं है, जो है उसी से हम गुजारा करेंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग रहा है, ऊपर नीचे सारी चीजें हमने देखी हैं। 2007 में मैं कैप्टन नहीं था, बट वर्ल्ड कप में हम नेक्स्ट स्टेज के लिए भी क्वालिफाई नहीं किए थे, तो वो बहुत डिप्रेसिंग फेज था। बट क्रिकेट आपको सब कुछ दिखाता है, एंड आई फील इट्स अ ग्रेट लेवलर। घुमा फिरा के आपको फिर उसी जगह लेके आ जाता है, एंड उस जगह फिर आप ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं चीजों को, सेम चीजों को जो आप पिछले बार जब वहां पे थे जितनी रिस्पेक्ट करते थे, जब दूसरी बार समय आपको वहां लाता है तो आप और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। तो सुना आपने जीत के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। सवाल महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया कि देखिए खिताबी जीत से महज 2 कदम की दूरी पर हैं आप, ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चुनौती को, क्या करेंगे आगे के मुकाबलों में? बड़ा सीधा सा जवाब महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से दिया।